Hello students, good morning. So as we have seen in previous video about going to sleep story, the animated story, now we are going to learn about the story in detail and the story from the textbook line wise, that how to read, how to pronounce the spellings and how to understand in a detail. Okay, so before starting this story, let's have a quick revision of the animated series which was sent to you yesterday. Okay, in this story there are characters like Mr. and Mrs. Fogg, their baby, neighbor cat and aunt. One day he tried to sleep but he could not sleep nicely. So he was remembering he read in a book that by counting ships jumping over the fans, he would be able to fall asleep faster. So what he did, he started counting ships, and when he started counting ships first time, उनकी वाइफ ने उनको क्या बोला, his wife awake him and told that the yellow hen wanted to lay eggs. First time she interrupted by hen, and the second time again Mr. Fogg started counting all the ships again, and the baby suddenly started crying. Then Mr. Fogg asking his wife to make baby sleep, then again he started counting the ships, and when he was supposed to fall asleep, till that time aunt came and knocked the door. और क्या बोला कि आपने पीछे का दरवाज़ा शायद बंद नहीं किया है, वहाँ पे चोर है. When Mr. Fogg get up from the bed angrily and coming at the door, but door is firmly closed. Door तो बहुत अच्छे से बंद था. Then he thought that I have to count all the ships again. Then again he started counting ships, and the neighbor cat started fighting, and the Mr. Fogg get up from the bed irritated, and he thrown over there. He thrown plate, soap, brush and so many things, whatever he can find over there. Then the cat went inside the home and they were silent. Now Mr. Fogg at the end waiting, and he was thinking कि like ऐसे sheep again and again count करना, it's not good thing, it is quite silly, but let me try for the last time. तब तक क्या हुआ, एक ज़ोर से आवाज़ आई. कौन सी आवाज़ आई, उनकी वाइफ बेड के ऊपर से गिर गई. His wife fallen down from the bed, and suddenly baby started crying, and aunt came into the room, and aunt is asking that did you feel like earthquake. मतलब वहाँ पे क्या आया था, earthquake आया था, जो मिस्टर फोग को सोने देने नहीं वाला था. Then at the end when Mr. Fogg tired and he was quite upset, he took pillow from the bed, अपने बेड के ऊपर से पिलो लिया, and went into the sitting room. वहाँ पे सोफे पे जाके lay down on the sofa, and he suddenly fall asleep faster over there. And when he awake in the morning, he realized, जब वो मॉर्निंग में जागते हैं तब उनको क्या रियलाइज़ होता है कि शीप ऐसे काउंट करने से नींद आ जाती है. दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, वो करेक्ट नहीं है, वो ट्रूथ नहीं है. ओके, सो आफ्टर दैट लेट्स सी आवर स्टोरी इन डिटेल लाइन वाइज. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, गोइंग टू स्लीप. मिस्टर विल्बरफोर्स फॉग. व्हाट इज़ दैट? मिस्टर विल्बरफोर्स फॉग, मिस्टर फॉग tries his best to fall asleep one night, but he just cannot because of all the things that happen around him. Mr. Fogg tried to sleep the whole night, but he could not sleep because उनके आसपास जो हो रहा था, surrounded by him happening, he was not able to sleep.
read on to find out he is able to fall asleep in the end. और ये आपको रीड करना होगा देखने के लिए कि लास्ट में whether he slept or not. One night Mr. Fogg was not able to sleep. एक रात Mr. Fogg was not able to sleep. He tried very hard to make himself sleepy. He tried very hard. बहुत ही हार्ड ट्राई की स्लीपी अपने आप को सुलाने के लिए, बट ही जस्ट कुड नॉट, बट सो ही नहीं पाए. देन ही रिमेंबर्ड समथिंग दैट ही हैड रीड इन अ बुक वंस. फिर एक बार बुक में कुछ रीड किया था, ऐसा याद आया. इट वॉज अबाउट अ मैन हु कुड नॉट स्लीप. वो बुक किसके बारे में थी? एक पर्सन के बारे में थी, एक मैन के बारे में थी जो कभी सो नहीं सकते थे. मतलब वहाँ पे दिया होगा ही कुड नॉट स्लीप कि कैसे सोना है, क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो वगैरह वगैरह वहाँ पे दिया होगा. सो लेट्स रीड फॉरवर्ड. Then he remembered something that he had read in a book once. It was about a man who could not sleep. The man in the book had managed to fall asleep by imagining that he saw a lot of ships jumping over a fence and by counting them as they jumped. Here, in that book he read that the man in the book had managed. वो book में वो man है, had managed मतलब here meaning is given was able to. वो that person was able to fall asleep. वो सो पाए थे. कैसे? By imagining. Imagine करके. क्या imagine किया था? That he saw a lot of ships jumping over a fence. आपको मैंने फेंस दिखाई थी लास्ट वीडियो में. लकड़ी की जो स्टिक से, वुडन स्टिक से जो पूरा सर्कल करते हैं बांधने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फेंस. तो वो पर्सन ने इसमें इमेजिन किया था कि वो जो फैंस है उसमें से एक एक शिप जंप करते जाएंगे, वैसे काउंट करना है. वो काउंट करने से वो पर्सन सो पाया था. बाय काउंटिंग देम एज दे जम्प्ड. जैसे ही वो जंप करते हैं, बाहर आते हैं, 1 अगेन जंपिंग, 2 3 4. बाय काउंटिंग दीज थिंग्स ही मैनेजेस टू स्लीप. नाउ आई थिंक this is idea given in the book that by counting ships one can sleep. Now when in actual this idea is getting implement, जब वो implement होने वाला है वो idea और कोई try करने वाला है, तब वो successful होता है कि नहीं, that is we have to see. I'll try that, he said to himself. उन्होंने अपने आप को बोला. He said to himself, I'll try that. So he closed his eyes and imagined ship jumping over a high fence. So he closed his eyes. अपनी eyes को क्या किया? Close किया. And imagine, and अपने दिमाग में imagine, assume करना start कर दिया that ship jumping over a high fence. ऊपर से high fence से वो jump करके आते हैं, ऐसा imagine किया. And began to count, और count करना भी उन्होंने क्या कर दिया? Start कर दिया. When he reached his 140th ship, जब 140th तब वो पहुँचते हैं, 140 तक वो काउंट करते हैं. He started to doze off. तब उनको नींद आने लगती है. doze off to go to sleep मतलब नींद ऑलमोस्ट आ गई थी. Suddenly Mrs. Fogg said, उनकी वाइफ ने सडनली उनको क्या बोला? Wilberforce, I think the yellow hen wants to lay eggs. मिसिस फॉग ने बोला, विल्बरफोर्स, आई थिंक द येलो हैन वॉन्ट्स टू ले एग्स. मुझे लगता है कि ये येलो हैन जो हैन है येलो कलर की, उनको ले एग्स करना है. शायद वो टीवी देखते होंगे, हम ऐसा अज्यूम करते हैं. नाउ ऑन द पेज नंबर 56, द नेक्स्ट पेज. देखो आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हो. मिस्टर विल्बरफोर्स फॉग इज इमेजिनिंग, दिस इज फेंस, ships jumping over the fence. Now when Mrs. Fogg said about the yellow hen, the Fogg, oh, don't trouble me with such things now. Mr. Fogg was quite angry and क्या बोलते हैं? Don't trouble me.
ट्रबल मीन्स मुझे परेशान मत करो. डू कीप क्वाइट मतलब मुंह बंद रखो. एंड गो टू स्लीप और सो जाओ. सेड मिस्टर फॉग क्वाइट इरिटेटेड मतलब एंग्री हो जाते हैं. हियर यू कैन सी द मीनिंग. एनोइड और एंग्री का मतलब होता है इरिटेट. ये स्टोरी पास्ट टेंस में है, दैट्स व्हाई दे पुट ईडी, इरिटेटेड. ही वेंट बैक टू हिज शिप अगेन. वाइफ ने उनको जगा दिया था, अभी वो जाग गए थे. देन वाइफ को उन्होंने गुस्सा किया और बोला कि आप सो जाइए अभी. फिर उन्होंने क्या किया? ही वेंट बैक टू हिज शिप अगेन. फिर से उन्होंने शिप काउंट करना स्टार्ट किया. ही काउंटेड एंड गोट अप टू 120 शिप. काउंट किया 1 2 3 4 5. कब तक पहुँचे? 120 तक पहुँचे. He was about to fall asleep when the baby began to cry. Oh God! उन्होंने वो सोने ही वाले थे. He was supposed to sleep and the baby began to cry. वो जो छोटी सी बेबी थी उनकी, वो रोने लगी. She started crying. Be quiet, Mr. Fogg shouted. Mr. Fogg ने बेबी को शाउट किया. उनको थोड़ी ना पता था. Mr. Fogg tried very hard to sleep. But even though when she cried, Mr. Fogg irritatedly, Mr. Fogg shouted and he was quite irritated on him and said, "Be quiet." He asked Mr. Fogg to tend to the baby and to put her to sleep. Mr. Fogg again said to Mrs. Fogg to tend to the baby and to put her to sleep. उनको बोला कि आप बेबी को ले लो and बेबी को क्या करो? सुला दो. When Mrs. Fogg had finally put the baby to sleep, जब finally Mrs. Fogg ने बेबी को सुला दिया, Mr. Fogg decided to try counting his imaginary ships again. जब बेबी को सुला दिया तब मिस्टर फोग ने क्या किया? डिसाइड किया? ट्राई टू काउंटिंग. अगेन काउंटिंग करना है शिप्स को, ऐसा उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया. The next paragraph. He had just finished counting the 64th ship. 64 तक उन्होंने काउंट किया. When his aunt knocked on the door and asked if he was awake. अभी तो नींद भी नहीं आई थी, 64 तक पहुँचे थे. तब तक उनकी आंट आई. नॉक द डोर, दरवाज़ा नॉक किया. एंड पूछा इफ़ ही इज़ अवेक, अगर वो जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, ऐसा पूछा. कुछ काम होगा? क्या काम था? शी सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू क्लोज द बैक डोर. उन्होंने बोला दैट उनके घर में एक पीछे दरवाज़ा है, तो शायद मिस्टर फॉग उनको बंद करना भूल गए हैं. शी थॉट शी हैड हर्ड थीव्स इन द बैकयार्ड. और उन्होंने ये भी सुना है कि पीछे के दरवाजे हैं, वहाँ पे तो चोर भी आते हैं. मिस्टर फोग गोट अप फ्रॉम द बेड इन एंगर. वो एकदम गुस्से से बेड के ऊपर से खड़े होते हैं. एंड वेंट डाउन टू चेक, और नीचे क्या करें? चेक करने के गए. ही फाउंड द डोर इज़ फर्मली क्लोज्ड. ही फाउंड दैट द डोर फर्मली क्लोज्ड. और उन्होंने तो देखा कि डोर तो बहुत अच्छे से बंद था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. डोर वॉज क्लोज्ड नाइसली. ऑन रिटर्निंग टू हिज रूम, वो डोर देख के वापस जब रूम में आते हैं, ही डिसाइडेड टू काउंट शिप वन मोर टाइम. उन्होंने डिसाइड किया कि शिप को वापस एक बार मुझे काउंट करना है. दिस टाइम ही रिच्ड 240 शिप. इस बार वो 240 शिप तक पहुँचे. ही वॉज नियरली अस्लीप व्हेन द नेबर कैट स्टार्टेड फाइटिंग लाउडली. जब वो ही वॉज नियरली अस्लीप, जब वो सोने ही वाले थे एग्जैक्टली, तब तक थर्ड टाइम क्या प्रॉब्लम आई? उनके नेबर में, उनके पड़ोस में जो कैट रहती है, उन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया. यू कैन सी इन द पिक्चर. और कैट जब फाइट करती है तब बहुत ही डेंजरस आवाज़ आती है उनकी, लाइक नो वन इज़ एबल टू स्लीप एट दैट टाइम. सो ऑन द 57 पेज नंबर, मिस्टर फॉग वॉज वेरी अपसेट. मिस्टर फॉग वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ही अपसेट हो गए. ही लिफ्ट आउट ऑफ द बेड एंड वेंट टू द विंडो. बेड में से फटाफट से खड़े होके
विंडो तक जाते हैं। ही बिगन टू थ्रो एनीथिंग ही कुड फाइंड एट द कैट्स, उनको जो भी दिखा, जो भी अपने हाथ में आया वो वहाँ फेंकना चालू कर दिया कैट के ऊपर। क्या क्या था वो? बूट्स, सोप, डिश, कॉम्ब, प्लेट, ब्रश एंड सो ऑन। ये सब अपने जूते, डिश, साबुन, कॉम्ब, प्लेट, जो भी हाथ में आया वो सब उनके ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया। फाइनली ही मैनेज टू गेट द कैट्स गो टू बैक इनसाइड द रिमेन साइलेंट। फाइनली उन्होंने क्या किया, कैट तो अंदर चली गई है सब फेंका इसके लिए और थोड़ी शांति हो गई। इट सीम्ड सिली टू कंटिन्यू काउंटिंग शिप अगेन। और मिस्टर फोग ने सोचा, मिस्टर विल्बरफोर्स फोग ने सोचा कि ऐसे शिप को अगेन एंड अगेन काउंट करना थोड़ा सिली है, फुलिश वाला काम है। बट मिस्टर फोग वांटेड टू ट्राई इट वन लास्ट टाइम उनको ये ट्राई करनी थी, ये ट्रिक है वो। दिस टाइम द ट्रिक नियरली वर्कड। इस बार वो सोने ही वाले थे, बट अगेन व्हाट हैपेंड आफ्टर इमेजिनिंग द 80 शिप जंप ओवर द फेंस। उन्होंने क्या देखा? आफ्टर इमेजिन किया दैट 80 शिप जंप ओवर द फेंस, ही वॉज फ्लोटिंग जेंटली इनटू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। वो शिप को अभी तो काउंट किया, देखा, तब तक वो अपने ड्रीम में चले गए थे, उनको ड्रीम आना चालू हो गया था, मीन्स वो सो गए थे। अब शायद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेट्स रीड फॉरवर्ड। That was when his wife rolled out of the bed and fell on the floor with a loud thud. तब तक में तो उनकी वाइफ बेड के ऊपर से नीचे गिर गई बहुत बड़े आवाज़ के साथ। The baby woke up and started crying soon again. क्या किया? वो बेबी जो सो रही थी वो भी जाग गई। Soon Mr. Fogg's aunt too came and asked, "Did you feel the earthquake?" तब तक में उनकी आंट भी वहाँ पे आ गई और पूछा कि आपको अर्थक्वेक आया, ऐसा लगा? सो फाइनली सब एक साथ हो गया ये तो। मिस्टर फोग डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अभी अर्थक्वेक को भी मिस्टर फोग को सोने देना नहीं था। मिस्टर फोग डिड नॉट नो व्हाट टू डू। फिर वो बहुत ही इरिटेट, परेशान हो गए कि मैं क्या करूँ अब। ही ग्रैब्ड अ पिलो एंड वेंट टू द सोफा इन द सिटिंग रूम एंड ले डाउन देयर। वो सोफ़ा में क्या करते हैं, रूम में से पिलो लेके वो जाते हैं सिटिंग रूम में क्या करते हैं, सोफ़ा के ऊपर वो सो जाते हैं पिलो लेके। सुन ही फेल अस्लीप। और उसको फटाफट से नींद भी आ गई। व्हेन ही वोक अप, जब वो जागे मॉर्निंग में, व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग ही वॉज क्वाइट श्योर दैट काउंटिंग शिप कुड नॉट हेल्प एनीवन टू स्लीप। मतलब आपको भी याद रखना है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको ऐसे कोई आइडियाज़ नहीं करने हैं। मिस्टर फॉग इज टेलिंग एट द एंड दैट काउंटिंग शिप्स इट्स ऑफ नो यूज़, नो वन विल फॉल asleep by counting these ships. Okay, so an extract from Elbow Room by Charles Herbert Clark. चार्ल्स हर्बर्ट क्लैर्क ने ये लिखा है। कहाँ से लिया है, कौन से बुक में से? एल्बो रूम से। Okay, so it was all about this story we learn. Now I expect highly from all my children कि क्वेश्चन आंसर सब लोगों को अब आ जाएंगे, एंड वो भी क्विकली विदाउट लुकिंग इनटू द टेक्स्ट बुक। ओके, सो इट्स डन।